और इसी क्रम में मैं and colleagues and government employees. Good evening, everyone. Thank you for having me. I am his eldest daughter, Vipasha. The best thing in life comes to those who always give their best for others. Honest, sincere, hardworking, punctual, loving, and most importantly, happy. These are the qualities I recall when I think about my father. And it's not just me. I'm sure anyone who knows you either professionally or personally would feel the same way. Today, on your last day at work after nearly about 3 decades of service, I would like to congratulate you on your success, not just as a government employee, but also as a father, a friend, and a good human being overall. Above all, growing up watching you has always inspired me in a multitude of ways, and whichever few good qualities I possess, I inherited directly from you. You taught me that a job can be more than just a source of income, that if done with purpose and intent, it can be a source of pride and meaning in our lives. I can recall hundreds of instances where, despite the opportunity to do so, you never took leave from work unless it was an absolute necessity. The deserved trust and respect you received from the peers and family members alike taught me the importance of honesty and integrity. Be always there for me, be it a career advice or a personal counsel. You showed me by example that a good father always provides time, attention, and love to his children, no matter how busy he is professionally. Thank you for all the life lessons. Thank you for being you, and wish you a happy retirement, Aji. I also wish you luck in future endeavors you might embark upon. I know you won't let retirement stop you from doing meaningful work and making a difference. Happy retirement, Aji. Thank you. To congratulate him on completing 31 years, 10 months, 8 days to be precise of his service to the government. In these years, we have seen many ups and downs, but he has never been hopeless and helpless and always been optimistic, motivated and disciplined for his work. There was quite a joke among my friends when in an argument they would say, "Teri baap ki road hai," and then I proudly used to say yes. He has always been a one-man army. He has never shied away from taking responsibilities and helping the needy ones. It is sometimes hard to understand his nature, which is quite a rough and tough from outside, but it melts like a baby from inside. He has a heart of gold, and this always inspires me to follow his path, that to always lend your help for needy. I have been into corporate life for almost 4 years now, but it's still I have to learn a lot from my father, how he is magically able to balance out his personal and professional life. He has always taken stand for what he believes, and his courage and dedication is quite known in his circle. I cannot imagine a better father figure who has shown immense trust and support in his children. He has never restricted his daughter, especially, to take her own path and follow her dreams. He has always been a support, biggest motivator, and the best cheerleader which one can have. You have done a job in serving the government, people, and family. Daddy, we welcome you home permanently. Congratulations once again on completing your service, and thank you all for taking time, supporting him, and being a part of his journey. Thank you. ही नहीं है, तो उस बारे में कुछ कहने का वो नहीं है, पर एज ए पर्सन बहुत इसके साथ हमने एंजॉय किया, फॉर्मल इवेंट मोमेंट्स भी और इनफॉर्मल भी, फैमिली लेवल पर भी। मुझे ये तो नहीं कहूँगा कि अच्छा लग रहा है, लेकिन ठीक है, ये तो एक पार्ट ऑफ लाइफ है, और मेरी शुभकामनाएं कि आगे मिलता रहे। मिलेंगे तो नहीं, क्योंकि कॉलेज का जो एसोसिएशन है वो उतना तो नहीं है, बट प्रोफेशनली भी एक्टिव रहे, आगे इसकी कॉम्पिटेंस भी है, कैपेबिलिटी भी है। मेरी तो इच्छा है कि प्रोफेशनली भी एक्टिव रहे। बाकी बहुत शुभकामनाएं, स्वास्थ्य के लिए अच्छा जीवन रहे, हम सब लोग वापस ऐसे ही मिलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय अतिरिक्त मुख्य अभियंता महोदय सुनील गुप्ता साहब, ऐसी साहब, समस्त पधारे हुए अधिशासी अभियंतागण, सहायक अभियंतागण एवं राज कर्मचारी गण, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं तहे दिल से
पीयर्स को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस अवसर सुखद सुपर एनिवर्सरी अवसर पर मंच पर बोलने का मौका दिया। मेरे बोलने से पहले पूर्व वक्ता श्री पंकज आर्य अजय आर्य साहब ने सबको मेरे परिचय से अवगत करा दिया गया। इस अवसर पर यही कहूँगा कि मेरी इस 32 साल की सर्विस में रहे उच्च अधिकारियों से मुझे काफ़ी सीखने का मौका मिला, जिससे मैं ये सर्विस सफलतापूर्वक पूर्ण कर सका हूँ एवं सभी उच्च अधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ कि मैं इनके कारण एक सफल अभियंता रहा। मेरे सर्विस के दौरान एक घटी घटना का जिक्र करना चाहता हूँ। जब मैं पुलिस बिल्डिंग जयपुर में एएन के पद पर था, उस दौरान रिजर्व पुलिस लाइन की एक बैरिक में पट्टी टूटने की शिकायत प्राप्त हुई थी। अकस्मात मुझे भरतपुर किसी काम से जाना पड़ा, लेकिन अभी श्रीमान जी अतिरिक्त महोदय जो बैठे हुए हैं वो उस समय अधिशासी अभियंता के पद पर तैनात थे। मेरी एब्सेंस में ये जेईएन को लेकर के और इंस्पेक्शन करने पहुंच गए। इंस्पेक्शन के दौरान पाया कि जब मैं वहां पर पहले कनिष्ठ अभियंता था तो बैरिक नंबर 4 की पट्टियों को टूट चुकी थी, तो स्टील गर्डर का सपोर्ट दे करके हमने रिपेयर किया था। आपके जाने के बाद में इन्होंने देखा कि यार ये पट्टियाँ तो बहुत ज़्यादा टूट रही हैं, अगर इनको करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। फिर इन्होंने मेरे पीछे से अनसेफ डिक्लेयर कर दिया। अनसेफ डिक्लेयर करते ही उसमें लगभग 300 सिपाहियों का निवास करते थे, जो एट ए टाइम में 100 के करीब आसपास रहते थे। थोड़े दिनों बाद में बरसात का सीजन हुआ, चूँकि बिल्डिंग चूने और पट्टियों की बनी हुई थी, तो उस समय मैं वहाँ पर मौजूद नहीं था। तो तेज़ बारिश और आंधी और बिजली कड़कने की आवाज़ से वो बिल्डिंग एक साथ ही धराशायी हो गई। तो 3 मंजिल वहाँ चले गए। उसमें एक हेड कांस्टेबल जो इंचार्ज था वो ड्यूटी करके आया, वो उसकी अलग साइड थी, तो वो वहाँ सोया हुआ था अपनी मनमर्जी से, जबकि उसको वहाँ नहीं रहना चाहिए था। उसको भी पट्टियों ने सपोर्ट दिया और उसके कोई हाथ में फ्रैक्चर आया, बाकी वो सेव हो गया। अगर ये कैजुअलिटी रहते रहते हो जाती तो ये बहुत बड़ा हादसा होता। इसका श्रेय मैं श्रीमान अतिरिक्त मुख्य अभियंता महोदय को देता हूँ कि इन्होंने सही समय पर सही निर्णय लिया, जिससे पीडब्ल्यूडी की बदनामी नहीं होता। दूसरा, एक्सपीरियंस के आधार पर श्री रवि जैन साहब अभी वो सर्विस में नहीं है, उन्होंने मुझे सिखाया कि भाई आप साइड पे जा रहे हो तो मोटार को कैसे चेक करोगे कि ये कौन से रेसों का है। हाँ। साहब मैं तो नहीं जानता, बताओ कि भाई गिलास तो हर जगह है, उसको भी मसाले को उठाओ और मसाले को गिलास में डालो। गिलास का कांच का होना चाहिए या प्लास्टिक के, बहुत चल रहे हैं। चिड़िया के उसमें पानी डालो, थोड़ी देर बाद में उसको हिलाने के बाद में जो सीमेंट है वो नीचे बैठ जाता है, बजरी और पानी ऊपर आता है। उसको मेजर कर लो, उससे पता चल जाएगा कि कितना 1 घंटा लगेगा, उसी समय पता चल जाएगा। अगर आपको कम लगे तो और मिक्स में सीमेंट बढ़वा सकते हो। एक श्रीमान मुख्य अभियंता महोदय से रिटायर्ड हुए श्री SS सिंघवी साहब, क्योंकि से बहुत कुछ सीखने को मिला। मोस्टली सारे इंजीनियर जो सर्विस में आते हैं लेटर लिखते ही और आग में पूरा हो जाते हैं, हम भी हुए थे, और वो खूब चिट्ठियाँ लिखते थे और उनका टाइमिंग था 5 बजे से और 9 बजे का वो ऑफिस में आते थे। मैं अकेला पीडब्ल्यूडी का ऐसा इंजीनियर था जो मैंने लगातार 6 साल तक उनके नीचे काम किया ऐसे चाहिए। बाकी तो हर चाहिए साल भर या 1.5 साल से ज़्यादा कोई टिकता रहता, सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। और ये है, मैं सिटी 2 में भी था, सिटी 2 से मैं सिटी 3rd हुआ तो सिटी 3rd में आ गया, तो वो भी सिटी 3rd में 6 महीने बाद में आ गए। तो फिर उन्होंने उनसे बात हुई कि सर आप इतनी चिट्ठियाँ क्यों लिखते हैं, तो उन्होंने केवल एक ही समझाया कि इंजीनियर चिट्ठियों से बहुत घबराते हैं, लिखा पढ़ी नहीं आती है। तो मेरा तात्पर्य ये है कि भाई आपको लिखना चाहिए, और कागज का पेटा,
1 घंटा हम कागज का पेटा कागज से ही पूरा होता है, इसलिए चिट्ठी पत्री से घबराना नहीं चाहिए। और कोई भी डॉक्यूमेंट से कोई भी लेटर आए तो उसका जवाब जरूर दो। जैसे डॉक्यूमेंट्स में कंस्ट्रक्शन के टाइम में अब तो यार कोई चीज़ की कमी है, नहीं बता सकते। क्वालिटी कंट्रोल रजिस्टर को मेंटेन करो कि यही कोई इंसिडेंट हो जाता है तो ये चीज़ आपको सर्विस में सेव करके रखती है। तो उनसे काफ़ी सीखने को मिला। ज़्यादा समय नहीं लोकेशन लेते हुए- भेजता हूँ व्हाट्सएप पे, तुम्हें को मैसेज एक में डेपुटेशन वाले सभी विभागों में लगभग मैंने सेवाएं दी हैं, जैसे नगर निगम, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, आमेर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी, RSRDC मैं दे चुका हूँ। मुझे अपना डिपार्टमेंट ही मतलब एक्सपीरियंस के तौर पर PWD ही सबसे अच्छा लगा। इसी क्रम में मैं नगर निगम का एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि वहाँ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मेघनानी थे और ऐसी और थे, उन्होंने कोई चिट्ठी लिख दी कि आपने ये CC रोड का काम 14 दिन में कंप्लीट कैसे दिखा दिया, जबकि क्यू स्ट्रेंथ 28 डेज में आती है। तो बिल बैक डेट में बना हुआ था, तो वो उलझे हुए थे। मेरे से पूछा यार जैसी जी आप थोड़ा सा ये सपोर्ट करो कि क्या इसका जवाब हो सकता है। मैंने कहा कि सर ये बिल्कुल सही जवाब है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे? इनके 10 दिन तक क्यूरिंग का प्रोविज़न है, उसके बाद में हम बिल बना सकते हैं। 28 दिन के बाद में वो कर सकते हैं। बिल आपका बैक डेट में बना हुआ है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका जवाब उन्होंने पूछा कि आपके पास क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, तो मेरे पास रेड बुक थी। मैंने कंक्रीट का वो खोल के और उसका फोटोकॉपी लगाई और वो उनका लेटर बंद हो गया था कि भाई ये 10 दिन में आप फाइनल कर सकते हैं। इसी तरीके से मैशनरी वर्क को 7 डेज की क्यूरिंग के बाद में आप कंप्लीशन दिखा सकते हैं। टेस्ट बजट बाद में भी लग सकते हैं। मैं अब श्रीमान मुख्य अभियंता महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि डिपार्टमेंट में अभी जैसे पहले हमारा वर्क चार्ज स्टाफ हुआ करता था, तो वर्क चार्ज स्टाफ में स्टोर मुंशी, मिस्त्री, मैट, ये 3 पोस्ट हुआ करती थी। इनके जैसे धीरे धीरे पोस्ट खत्म होते थे, वर्क चार्ज में बैन लग गया, तो सुपरविजन के लिए ये हमारे मैसन, बेलदार सारे कर्मचारी काम आते थे। आज की डेट में वर्क चार्ज कर्मचारी लगभग खत्म ही हो रहे हैं, न्यू क्रिएशन नहीं है। तो अभी पहले तो JN से AN बनाया तो बहुत प्रॉब्लम आई डिपार्टमेंट को, उसका बहुत भोगी मैं हूँ, क्योंकि जब मैं AN बना तो JN नहीं थे, तो मुझे भी JN ने काम किया, तो मैं तो लगातार मुझे तो कोई फायदा ही नहीं हुआ AN बनने का, क्योंकि तो चलो ये तो गवर्नमेंट ने अच्छा किया कि भाई JNO का क्रिएशन कर दिया, JN आ गए। तो मेरा केवल एक ही सजेशन है कि सर JN के अंडर में कम से कम एक सुपरविजन स्टाफ, मिस्त्री या मैट, कोई भी एक आदमी का क्रिएशन करवाया जाए तो क्वालिटी पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। हमारे लिए भी कुछ बोलिए। दूसरा सर और कहूँगा अभी, दूसरा मैं कहूँगा कि सर पहले जब हम JN लगे थे तो 15 दिन की वर्कशॉप क्वालिटी कंट्रोल की हुआ करती थी। अभी मेरी डॉटर AN लगी है, इनको केवल 1 दिन के लिए बुलाया गया है, जबकि ये लोग डायरेक्ट कॉलेज से निकल कर के आए हैं। इनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि भाई फील्ड में कैसे काम किया जाए। तो हमें जो 10 से 12-15 दिन की जो ट्रेनिंग होती थी, उसमें हमको काफ़ी डिपार्टमेंट से रिलेटेड काफ़ी कुछ सिखाया जाता था और रिटन में नोट्स भी दिए जाते थे। मैं इसी का ही एग्जाम्पल देता हूँ कि हमारे भार्गव साहब थे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, उसमें वो किताबें लिखा करते थे। मेरा आमेर डेवलपमेंट अथॉरिटी में डेपुटेशन हुआ तो वहाँ एक खमीरा का कार्य होता था, खमीरा एंड एराइस। तो खमीरा
मीरा के काम में क्या क्या मटेरियल है हम तो सब भूल चुके थे, क्योंकि पीडब्ल्यूडी में खमीरा का प्रचलन ही नहीं था। तो मैंने उनकी बुक लेकर के और हवा महल की पुताई का एक चैलेंजेबल जॉब आया, जो मेरे से पहले निरंजन शर्मा साहब ने बनाया, वो 6 महीने में पुताई करके दी थी। फिर मैंने उस बुक के आधार पर 10 ड्रम बनाए, 10 ड्रम का एक ही तरह का माल खोल खोल के डाला, जिसमें चूना है, गुड़, गोबर, मेथी और भी कुछ चीज़ें थी। तो सबको एक साथ करके फिर उसकी रंगाई पुताई का काम किया, जो हवा महल है 2013 में मेरे द्वारा करवाया गया था। मात्र 1 महीने में उस काम को कंप्लीट करवा दिया गया था, जिसमें मुझे प्रशंसा पत्र भी मिला था। ऐसे ही सुभाष चौक हवारे के काम में भी मंत्री द्वारा मुझे प्रशंसा पत्र मिल चुका है। तो मैं तो यही कहूँगा कि सर ये JEE नेगेटिव को और 10 से 12-15 दिन की वर्कशॉप लगाई जाए। अंत में ज़्यादा सामान नहीं लेते हुए मैं पधारे हुए सभी अभियंतागण एवं कर्मचारीगण को धन्यवाद देता हूँ, जो इस अवसर पर उपस्थित रहे एवं मेरे परिवार वालों का हौसला अफजाई किया, एवं मेरे इस सेवा काल में किसी से भी अनवन गलती हो गई हो तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। धन्यवाद। काम के दौरान सारे समय में